function of n variable. So suppose f was a function from some open set of this Rn to Rm. So this is open. This is open in Rn, and x is a point. X is a point in this U. Then we say that this f is differentiable. F is differentiable, and this linear transformation A from this Rn to Rm. This is the derivative of the function f at the point x if the following limit exists. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिलने वाला है. उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम f का डेरिवेटिव करेंगे, एंड दिस लिमिट इज दिस लिमिट h tending to 0 and norm this fx plus h minus fx and minus this ah and divided by this norm of h, and this should be 0. अगर इस तरह का है तो हम कहेंगे कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A है, this linear transformation A, this is the derivative of the function f at the point x. You can also write this whole expression as RH, and in some books it is also written that this fx plus h is equal to this fx plus ah and plus this rh, where this rh upon h, this norm of rh divided by norm of h, this limit h tending to 0, this should be 0. तो exactly वही टर्म है. आप इसको सब्ट्रैक्ट लेफ्ट में करेंगे, fx plus h minus fx minus ah, this will be your rh. तो ये टर्म आपका rh हो जाएगा. This rh upon h, तो norm of this rh upon h, where this is your this norm is norm of rn and this is your norm of rm. अगर ये लिमिट 0 होता है h टेंडिंग टू 0 पे, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x पॉइंट पे, और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन a मिलेगा इसको हम कहेंगे वो फंक्शन की डेरिवेटिव है एट वन पॉइंट. So let us take an example. तो सपोज फिर हमने ये भी दिखाया था कि जब भी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव यूनिक होगा. ये हमने दिखाया था कि अगर f डैश x इज इक्वल टू a1 है और अगर f डैश x इज इक्वल टू a2 है, अगर दो अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मिल रहे हैं तो a1 को a2 के इक्वल होना पड़ेगा. सर या हेलो सर. हाँ बताइए. सर कोई ज्वाइन होना चाहता. ओके ज्वाइन होना चाहता है. हाँ ठीक है, ठीक. यस. So let us take this example. So consider the simplest map from Rn to Rm as a linear transformation. So let this f itself is a linear transformation. So let f be a linear transformation from Rn to Rm. And let x be a point in this Rn. Then my claim is that at any point x, the derivative of f is f itself. ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने x लिखा है कि f डैश एट द पॉइंट x, और यहाँ पे हमने x नहीं लिखा है बिकॉज दिस f इज एक्चुअली अ मैप. दिस इज अ मैप. जब हम x लिख देंगे तो वो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी. एट दिस लेवल दिस f इज अ मैप. तो f डैश x is actually a map, and this map itself is equal to the linear transformation f. So you have to verify that if you put a is equal to f here, this condition should be satisfied. So let us see what happened. So this limit h tending to 0. What about numerator? So your numerator will be this fx plus h minus fx
और हमको ये देखना है कि क्या a के जगह पे अगर हम f लिख दें तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो माइनस एफ एच and divided by this norm of h. And you see, because f is a linear transformation, this fx plus h is equal to fx plus fh. Fx plus h identically equal to fx plus f. Because f is a linear transformation, this fx plus h is equal to fx plus fh. So therefore this numerator is equal to 0. आप चाहे h 0 लीजिए या ना लीजिए, न्यूमिनेटर पहले से 0 है. So therefore this is identically equal to 0. So therefore this limit must be 0. अभी डिनोमिनेटर नॉन 0 है लेकिन न्यूमिनेटर पहले ही 0 हो गया. So therefore this is equal to 0. And therefore ये जो नंबर है ये एक सुटेबल कैंडिडेट है डेरिवेटिव होने का. This a is equal to f. But you know this limit is always unique. So therefore this is the unique limit. This is the unique derivative of the function f at the point x. In fact at any point x. So therefore this shows that this f dash x is equal to f. तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लीजिएगा, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद होगा. कई बार इस तरह से ये कॉम्पिटिशंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कोई कॉम्प्लिकेटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और फिर आपको डेरिवेटिव पूछा जाएगा किसी कॉम्प्लिकेटेड नंबर पे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लगते हैं इसको कैलकुलेट करने. बट आपको याद होना चाहिए जस्ट लाइक जैसे इसका रोल एक आइडेंटिटी का रोल है कि जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फंक्शन खुद के इक्वल होगा. जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, सपोज एफ इज ए, क्योंकि आप जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर आप बेसिस को फिक्स कर देंगे वेक्टर स्पेसेस में, तो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन in the form of matrices. So suppose you fixed a basis in Rn and a basis in Rm. With respect to those bases, this f can be written in the form of linear transformation. So in fact, if you fix the basis, you can prove that there is an equivalence between these linear transformations and the class of matrices. So if you call this matrix, consider this matrix as a map. मान लीजिए इसको हम कुछ सपोज x, so that when you consider any point x here where x is element of Rn, so consider here say x1 x2 xn, so this mx is nothing but the मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स m by x. तो इस तरीके का अगर आप इसको और ये दिखा सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी a linear transformation from Rn to Rn. So this the set of all matrices. In fact, if you choose a matrix, you can show that this kind of matrix multiplication is actually a linear transformation from Rn to Rn. So this x goes to mx, you can say this x goes to mx. This mx is actually element of this Rn and this x is element of Rn. तो ये इस तरह का जो मैप है x goes to mx, और कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का बताइए डेरिवेटिव क्या है. तो बिकॉज मैट्रिक्स इज नथिंग बट इफ यू फिक्स द बेसिस इट्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट्स डेरिवेटिव इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. तो कोई अगर मैट्रिक्स देखा जाए, दे दिया जाए और कहा जाए इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव, तो बिना किसी आप हेजिटेशन के कह सकते हैं कि इट्स डेरिवेटिव इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. नाउ एज यू नो, अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए आपको, तो सपोज दिस f is a linear transformation from Rn to Rm, and suppose this E is a basis of this Rn, you can say the natural basis E1, E2, En, and say U is a basis of this Rm, U1, U2, and Um, where this Ei
means at ith place it is 1 and the rest entries are 0 and all other entries are 0. And similarly here also, for this ui also, this ith term is 1 and all the other m minus 1 entries are 0. So these are called natural bases. So with respect to this natural basis, you have matrix representation of this linear transformation. So you can write this f ej, you can write this f ej, the image of this basis vector, as a linear combination of the basis in Rm. So you can write as a linear combination of elements of this ui vector, ui. And here you can write some coefficients. So let us write in this way, that it is say I, and we have to sum over I, and we have to write j also. So let us write aij. So this is true for each j. So each element ej in this basis has its image in Rm, and they can be written as linear combination of elements of this basis. So here I varies from 1 to m. In particular for this j, if you explore it, this is nothing but a1j u1 plus a2j u2 plus dot dot a mj uj. So these coefficients actually, they form the jth column of this matrix m cross n. So they form this jth column. So maybe you can write this a1 लास्ट में UM होना चाहिए ना? sorry, am j and um. Sorry, yes, you're right. aum, yes. So a1j to amj, and this j varies from 1 to n. So you can write this first column, second column, third column. So basically these coefficients are the jth entry of this matrix, this m cross n matrix, and this matrix is called the matrix representation of this linear transformation f with respect to the basis EU. आप जो भी basis notation लिखना चाहें, EU लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं, whatever you want, EE bar लिख सकते हैं. But anyway, you have to understand that when you take the image of the jth vector in the basis of domain, this gives the jth column of this matrix representation of this linear transformation. So in this way, you get a matrix representation of this linear transformation with respect to given basis. और ये सब चीजें आप लोगों ने linear transformation में पढ़ा भी है. अगर आप जैसे ही basis बदल देंगे, आपको ये linear transformation बदल जाएगा. You will get different matrix. But there is also some relation between these matrices, these matrix representations. In particular, they all lie in a similarity class. So these matrices are basically similar to each other. So I'm not going in detail in this linear algebra portion, but you should know at least this fact that this linear transformation has a matrix representation whose entries are given by this image of the jth vector of the basis. So you know this f dash x, अभी हमने ये कहा कि जो फिलहाल ये f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, लेकिन अभी अगर हम मैप जो अभी ले रहे थे, जो हमने उसमें कैपिटल F को एक जनरल मैप लिया था from U to which is subset of Rn to Rm. This may not be a linear transformation, it's a general map, but its derivative is always a linear transformation. ये हम लोगों ने देखा था कि this f dash x at any point x is a linear transformation from Rn to Rm. So this also has a matrix representation.
So what is its matrix representation? So this f dash x, so in particular this f dash x, if you apply on the basis vector of this Rn, so f dash x, so first let us explore this f first, maybe on next slide. So this f is a general map. This need not be a linear transformation. This f is a general map. आप notation से confuse ना होइएगा, क्योंकि हमने linear transformation को भी f से लिया था. आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरा small f चाहो तो लिख सकते हो. But this f is a linear transformation, and now I am considering this general f, which is a general map, differentiable map from Rn to Rm, and now I am going to consider its derivative as a linear transformation. So let us consider this f as a map from U to, which is a subset of Rn to Rm, so that this fx, sorry, this capital F, so this capital Fx, so this fx for each x in U, they are elements of Rm. So Rm means it has m components. So you may call as f1x, f2x, and dot dot this fmx. And these are actually element of Rm. You can also write in this form this sigma, this fix, and this ui, where I varies from 1 to m, where ui is the natural basis of this vector space Rn. Now, this f dash x, because this is a linear transformation, when it acts on the basis vector of Rn, that is, say this Ej, what is your expectation? ये चूंकि डेरिवेटिव है, f dash x एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब ये एक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको? एक मैट्रिक्स के jth कॉलम के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. So this is nothing but, so basically this is going to be a proposition show that if f is differentiable, if f is a differentiable map from Rn to Rm, U to Rm, show that this f dash x Ej is equal to the sigma and this del f I over partial derivative, or you can write directional derivative, over del x j at the point x and uj and ui, and I varies from 1 to n. You can also write this as this directional derivative of fi with respect to j or ej at the point x, and ui, I varies from 1 to n. So this is very interesting. आपने देखा कि कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिन फंक्शंस के लिए पार्शियल डेरिवेटिव या इवन डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तक नहीं था. बट हियर यू सी, if your function is differentiable, that is very strong condition. If your function is differentiable, you can write the derivative of the function in terms of partial derivative. That is very interesting. That is very interesting. कि partial derivative का exist होना केवल पर्याप्त नहीं है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा. इवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ये भी नहीं सफिशिएंट है. your all directional derivative may exist at a point, but your function may not be even continuous. डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए. लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाए, that is an extra assumption. So if this function is differentiable at a point, you can write its derivative in terms of partial derivative. And this is nothing but the jth column of this matrix representation of this linear transformation f dash x. In fact, अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे जिस f dash x का, अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, so you will get this matrix of order m cross n, and entries are nothing but the partial derivative del f I over del xj. And this is not, generally you call this as a Jacobian matrix. तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है, कोई मैप दिया गया है Rn से Rm में, और ये स्ट्रांग कंडीशन अभी हमने
ये मान लिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज नथिंग बट द जैकोबियन मैट्रिक्स। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप लोग ऑनलाइन हो या सभी ऑफलाइन हो गए? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? हमने ये बताया कि अगर फंक्शन, आप देखेंगे फिर से मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि अगर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो, इवन डायरेक्शनल, उससे भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगी कि सभी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। लेकिन आपने एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल को कल अशोक फिर से एक्सप्लोर कर देंगे एक बार और, या एक दो और एग्जांपल आपको बता देंगे। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे आपके एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत सारे एग्जांपल आप ढूंढ लेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। इवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे आप क्रक्स ऑफ द स्टोरी देखिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, दैट इज एन एक्स्ट्रा एज्यूम्पशन, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट्स डेरिवेटिव कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो ये जो पार्शियल, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज आप कह सकते थे साहब क्यों फिर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा रहे हो, क्योंकि जब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, फिर बेकार है ये। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाए, यू एज्यूम दिस एक्स्ट्रा कंडीशन, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैन बी डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, एंड मोर प्रिसाइसली इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल बेसिस, its matrix representation is nothing but the Jacobian matrix of the given function. So now I'm going to prove this fact. Is it okay now? Yes sir. Yes sir. Yeah. Okay. Yes sir. So let us continue. हाँ, कुछ लोगों ने कुछ बुक्स की बात की थी, तो बहुत सी किताबें आपको रियल एनालिसिस में, अब तो आप लोगों के पास चूंकि गूगल सर्च है, आप लोग तमाम सारे बुक्स को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन है, केवल आप रियल एनालिसिस सर्च करिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी सर्च करिएगा, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन रूडीन की किताब जो है वो स्पेशली मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो आप लोग रूडीन की किताब को फॉलो कर सकते हैं। या और जो भी किताब अगर आपको लगती है कोई अच्छी किताब है, तो हमें लगता है 2+2 मैथमेटिक्स में हर जगह 4 होता है, हर किताब में 4 लिखा हो, हम किसी को बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे ये किताब अच्छी है या खराब है, हर किताबें अच्छी हैं। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है, ये सभी किताबों में आपको मिलेगा। जहां भी मल्टीवेरिएबल कैलकुलस किताब आप पढ़ेंगे तो हर किताबों में ये डिफरेंशिएट, जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वो हर किताब में आपको मिल जाएगा। इसमें मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का केवल हम डेरिवेटिव का पार्ट बताएंगे और एक तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम बताएंगे इंक्लूडिंग इनवर्स फंक्शन थ्योरम, और उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हम बताएंगे आपको। तो इसलिए किसी भी किताब में मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा चूंकि रियल एनालिसिस में हमको नहीं अब पढ़ाना है, इसलिए आप किसी किताब को टच कर सकते हैं केवल ये डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन के लिए और जो थ्योरम्स मैं बताऊंगा उसको पढ़ने के लिए। इसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे आ जाएंगे। तो लेकिन अगर प्रिसाइज को एक नाम आप जानना चाहते हैं तो मैं रूडीन के नाम को रिकमेंड कर सकता हूं। ओके, सो लेट अस कम टू प्रूफ। सर नॉर्म वाले कॉन्सेप्ट फंक्शनल एनालिसिस का टॉपिक हो गया ना? नहीं, सब मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। आप लोग, यही तो बात है कि आप अलग अलग उसको अलग अलग, फॉर्चुनेटली हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर में पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें एक मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। उसको आप नॉर्म को कभी कभी देखिएगा, हम पढ़ा रहे होंगे, कभी नॉर्म आ जाता है, कभी वेक्टर स्पेस आ जाता है, कभी कैलकुलस आता है, कभी अलजेब्रा आ जाता है, तो ठीक है, उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये ट्रूली स्पीकिंग दे आर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक। इसमें आपको अलजेब्रा भी मिल जाएगा, इसमें आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा। कभी भी आप ये ना समझिए, हाँ नॉर्म को पढ़ते और डिटेल में हम एक्सप्लोर करते हैं फंक्शन एनालिसिस में, लेकिन नॉर्म हर जगह है, ठीक है। तो नॉर्म बेसिकली हमने जो शुरू में पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि नॉर्म क्यों हम इसमें लेते हैं। आरएन एक्चुअली एक बहुत ही रिच स्ट्रक्चर रखता है, तो आरएन में एक नॉर्म हम लेते हैं। उस नॉर्म की मदद से पहले तो नॉर्म स्पेस हमने ले लिया, एक नॉर्म डिफाइन किया। उसके पहले भी थोड़ा आप और चलिए तो उसको हमने वेक्टर स्पेस मान लिया था, तो आप कहेंगे वो लीनियर अलजेब्रा का ब्रांच हो गया। तो लीनियर अलजेब्रा था, फिर हमने नॉर्म लेकर के उसको नॉर्म स्पेस बना दिया।
लेकिन वही नॉर्म हमको एक मीट्रिक देने लगा, फिर वो मेट्रिक स्पेस बन गया, वो मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच है। मेट्रिक स्पेस की वजह से आप ओपन सेट की बात करें, ओपन बॉल की बात करने लगे, फिर ओपन बॉल से आपको ओपन सेट मिल गया। ओपन सेट की वजह से आप फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। केवल ओपन सेट इनफैक्ट दिया गया तब भी आप कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। लेकिन हमको उस पर केवल कंटिन्यूटी नहीं स्टडी करना था, हमको उस पर डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर डालना था। तो उस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको कुछ और उस पर स्ट्रक्चर्स चाहिए थे। तो इसलिए बेसिकली हमने कह सकते हैं कि सो कॉल्ड एक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर को और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, ताकि जो आपका वेक्टर स्पेस है, इन दोनों को मिक्स करके हमने दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ लिया है और तब हम उस पर कैलकुलस स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्म कह सकते हैं कि नॉर्म एक हमारे लिए टूल है। एक तरफ हमने नॉर्म लिया, जिस नॉर्म की मदद से हमने उसको एक मेट्रिक स्ट्रक्चर डाला, जिस मेट्रिक की मदद से हमको ओपन सेट आने लगे, जिससे हम टोपोलॉजी डाल सकते हैं। और टोपोलॉजी बेसिकली वो भी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, वो एक अलग मैथमेटिक्स का ब्रांच है। तो उस टोपोलॉजी की मदद से हम बेसिकली हमको नियरनेस का आइडिया होता है, हम लिमिट की बात कर सकते हैं। और जब हम ये फील्ड स्ट्रक्चर या वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसके दो एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ लेने के बाद ही हम इस Rn पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जनरल नॉर्म हम स्टडी करते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो इनफैक्ट वो ऐसे वेक्टर स्पेसेस पे भी नॉर्म आप डाल सकते हैं जो आपको यहाँ विजुअलाइज नहीं होगा, बट दे आर एक्चुअली लाइक स्पेसेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का स्पेस आप ले लीजिए। और भी बहुत सारे स्पेसेस जैसे आपको मिलेंगे जो उसमें विजुअलाइज आपको नहीं होगा, उस पे नॉर्म किस तरह का लें, अलग अलग तरह के नॉर्म आप स्टडी कर सकते हैं। बट हियर फॉर सिंप्लिसिटी दिस नॉर्म इज ओनली यूजफुल टू डिफाइन, टू मेक इट a metric space so that we can talk about open set and their compatibility with this norm structure, so that we can discuss the calculus in Rn. Is it okay? Yes, sir. Okay, so go ahead. So now I'm going to prove this fact that how this partial derivative determines the derivative of the function in any Hello, direction, provided the function is differentiable. So proof. Yes, someone is asking. सर प्रीवियस स्लाइड में आपने f प्राइम x के सफिक्स में क्या लिखा हुआ था? Oh, sorry. ये वो बेसिस हमने लिखा था कि ये जो f डैश x है ना, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस EU। ये हमने E बेसिस लिया था Rn का, आप यहाँ पे देखें तो Rn का बेसिस हमने E लिया हुआ है और Rm का बेसिस हमने U लिया हुआ है। तो ये EU बेसिस, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना f का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस EU, मतलब डोमेन का बेसिस E है और रेंज का बेसिस U है। तो हेलो हेलो आई थिंक इसलिए सर अप्लाई हो गया उनका क्या system बात बन नहीं रहा आ रही थी। हेलो, Yes, sir. ये सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कि सर शायद ऑफलाइन चलेगा, लाइट चली गई है, ठीक। हाँ हाँ लाइट चली गई है। तो क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? अब आ रहा है। अब आ रहा है अभी आ रहा है। आ रहा है। हाँ, उसकी लाइट यहाँ लाइट चली गई है, तो अभी मैं लैपटॉप लगा रहा हूँ, तब तक शायद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। हाँ मैं आ रहा है, तो हम लिखते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ दिस। So proof of the solution says this f dash
h acts on this ek, this is equal to the sigma b and f I and j acts at the point x and ui, and I varies from 1 to 2. Right? Okay. So, because we have assumed that the function is differentiable, so hence this f is differentiable at x. F is differentiable at x. Let us consider this difference fx plus say h is equal to let this h vector is equal to this TEJ. So in the jth coordinate axis we consider this vector x is equal to TEJ. So this is your x TEJ. So x plus TEJ minus fx, and this is equal to this f dash x, this acts on this vector h. तो h की जगह पे हम लिख दे रहे हैं TEJ and plus this RH. I'm writing here RH, remainder term, but h is equal to TE. Okay. And moreover, सर this norm, yeah, सर ये लास्ट टर्म क्या लिखा है? R, remainder term, this RTEJ. ओके सर. क्योंकि f चूंकि डिफरेंशिएबल है तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं fx plus h minus fx minus f dash x means a of h की जगह पे हो गया TEJ and this divided by norm of h tending to 0 as h tending to 0. तो इतने की जगह पे हम लिख दे रहे हैं रिमाइंडर टर्म RH where h is equal to TEJ. So this is your this RTEJ. This is actually equal to this term minus fx and minus this f dash x into TEJ. जो डेरिवेटिव में जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उस पूरे को हम RH कर दे रहे हैं. तो this divided by this h यानी TEJ, this should be 0. This should be 0 when you take this limit t tending to 0. Is it okay? This is why, because f is differentiable. Because f is differentiable, you can write this fx plus h minus fx minus f dash x into h, which is equal to RH, such that this RH upon h limit. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. चलिए जो बोर्ड पे दिख रहा है वो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? इसमें भी कोई दिक्कत है? सर दिख रहा है, क्लियर है. ओके, या ओके. राइट. तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर है या फिर से इसको एक्सप्लोर करें? दिस fx बेसिकली डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था? दिस fx प्लस h माइनस fx माइनस f dash x into h and divided by this norm of h. You can also take norm here and this tending to 0 as limit h tending to 0. अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है. बेसिकली दिस विल बी सेटिस्फाइड. दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस विल बी सेटिस्फाइड एंड दिस लिमिट टेंडिंग टू 0. तो यहाँ पे h के जगह पे केवल हमने क्या किया, हमने ले लिया jth डायरेक्शन में. या तो बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस. सो वी कंसीडर अलोंग दिस jth कोऑर्डिनेट एक्सिस यूनिट वेक्टर EJ है, तो उसके अलावा हम TEJ ले ले रहे हैं. दैट इज वी जस्ट पैरामीटराइज दिस coordinate axis, jth coordinate axis. So we consider this h as
vector along this jth coordinate vector with this norm st. इसका t नॉर्म का हम एक वेक्टर ले लेते हैं TEJ एंड वी पुट h इक्वल टू दिस। अब ये पूरे न्यूमरेटर को हम कह दे रहे हैं RTEJ। ये आपका हो जाएगा आप fx plus h minus fx minus f dash x into h. You can write this as RTEJ, where this RTEJ divided by norm of TEJ, this will be 0 when t tending to 0. Right? Okay. Now what we do, ये कार्य है ना पूरा, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। Now what we do here, so let us divide this expression by t, simply t. Let us divide this expression by t. So what will happen? This fx plus TEJ minus fx divided by t, and because this f dash x is linear, this is a linear transformation. Function आपका differentiable है, तो f dash x is a linear map. t बाहर आ जाएगा, so this will be equal to t से ये t cancel होगा, and this is simply f dash x and this acts on this vector EJ and plus this R TEJ and divided by सर या आपने जो यहाँ लिखा है RTEJ बाई फिर नॉर्म में TEJ, सर वहाँ पे सिर्फ नॉर्म में T होना चाहिए ना? कोई बात नहीं, बिकॉज नॉर्म ऑफ EJ तो 1 हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे केवल आप नॉर्म, क्योंकि नॉर्म ऑफ TEJ लिखे हैं तो पूरे वेक्टर के साथ है, बिकॉज दिस इज H, एक्चुअली ये पूरा H वेक्टर TEJ है, ठीक है। तो आप नॉर्म ऑफ H जब लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली डेफिनेशन you can write this as RTEJ upon simply T. Simply T you can write, and T tending to 0, right? So from this expression, if you take T tending to 0, अगर इस पूरे दोनों तरफ अगर आप लिमिट T tending to 0 ले लीजिए, तो क्या होगा? यहाँ पे तो T है ही नहीं, यहाँ पे T है, so this expression will be 0. This is going to be 0, and from here you will have this f dash x at EJ, this is equal to this limit T tending to 0, और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं fx को। अगर आप ये डेफिनेशन याद रखिए कि fx क्या है, तो हमने ये लिखा है कि fx is nothing but this, in component wise you can write fi ui, so this is your simply fi and x plus TEJ minus fix divided by T and ui, and you can write sigma here. Sigma I varies from 1 to n. 1 to n. Now take limit T tending to 0 inside this bracket. So then what will happen? What is this? ये अब रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, fi x plus TEJ minus fix divided by T and T tending to 0. So this is nothing but the partial derivative of fi in direction of EJ. So this is nothing but the sigma and del fi upon del x j at the point x and into this ui, this I write ui, and this I varies from 1 to n. Sorry, 1 to n. So this was your expression you wanted to see. तो इस तरीके से आपने देखा, लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये हमने पहले से मान रखा है कि f डिफरेंशिएबल है। If f is differentiable, then its derivative, अब क्योंकि सभी बेसिस वेक्टर पे आप इसका इमेज प्राप्त कर लेंगे, तो इनफैक्ट कोई भी वेक्टर अगर v दिया जाए तो आप इस f डैश x के द्वारा उस वेक्टर का इमेज भी लिख सकते हैं, and therefore in fact this f dash x you can write this as a linear transformation.
कोई भी वेक्टर v अगर आप ले लीजिए, जिसको आप लिखें v is equal to vj, so you can write this f dash x explicitly with the help of this formula, right? And moreover, you can also write its matrix representation with respect to the natural basis, and with respect to natural basis, its component is nothing but this del f I upon del xj. The jth column vectors will be del f I upon del xj for each I equal to 1 to n, and in more explicitly, the ith row and jth column will be del f I upon del xj. That is nothing but the Jacobian matrix of the given. फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ चीजें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एज्यूम किया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अभी तक हमने कोई ऐसा कंडीशन नहीं देखा कि वो ये बता पाए कि हाँ साहब एक्सेप्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन में तो जरूर आपने कहा है कि हाँ साहब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे और 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ साहब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन उस डेफिनेशन के अलावा और कोई ऐसा कंडीशन अभी तक आपने नहीं देखा है जिसमें आप ये कह सकें कि हमारा फंक्शन, ये कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये कंडीशन आपको ये आपको बता रहा है, कह सकते हैं कंप्यूटेशनल टूल आपको दे रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में हम उसके डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। Now, I want to give a sufficient condition for the differentiability of a multivariate function. इसके बाद हम एक कंडीशन की बात करने जा रहे हैं, वो आपको इंश्योर करेगा कि हाँ अगर उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा आपका फंक्शन तो वो इंश्योर करेगा कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और बाकी काम को ये कंप्यूटेशनल टूल कर देगा, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आपको दे देगा। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। और वो कंडीशन ये है कि अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, if the partial derivative exists and continuous at the point, then your function is differentiable at that point. So that is very interesting. केवल पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं और देखेंगे, फंक्शन आपका इवन कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है, बट केवल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और साथ साथ कंटिन्यूअस भी हो जाए। इफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट and together if it is continuous, it ensures the differentiability of the function, and its derivative can also be written in the combination of these partial derivatives. So that is very important result, and is a kind of sufficient condition for differentiability of the function. So I think maybe I have only a couple of minutes, so what can I do? I'll just state the theorem and we'll do one next. Yeah. So the theorem is here. So let F be a map from this open set of Rn to Rm, and let this X be, or maybe for more specific, let us choose X0 so that we can talk about X. So let X0 be a point in U. Now here is the hypothesis that if all partial derivatives of f means of its component also, so you can say del f I upon del xj, if all partial derivative of f exist and continuous at x0, then this f is differentiable, and moreover its derivative, this f dash x0 for this basis vector ej
this can be written explicitly just like this previous expression. You can write its partial derivative del fi upon del xj, and at the point this x0 and ui, I varies from 1 to n. So our next turn, I will show that the existence of partial derivative together with its continuity at the point, they ensure the differentiability of the function. तो एक तरह का ये sufficient condition है, हालांकि ये necessary condition नहीं है. So this is just a sufficient condition. इसको आप लोग बाद में देखेंगे, आप इसको भी कुछ relax कर सकते हैं, but I am not going in detail for relaxing these conditions. लेकिन इतना जरूर है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस हो जाए तो निश्चित रूप से गारंटेड आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू आप पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं. तो लेट अस फिनिश टुडे एंड आई विल प्रूव दिस थ्योरम ऑन नेक्स्ट टर्म. तो कल हमें लगता है कि हाँ बताइए सर, कॉची-रीमन इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है सर, वो यही तो स्टेट करती होगी कि जो सेकंड कंडीशन है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहते हैं एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस है तो वो कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. अभी सब चीजें आपको मैं बताऊंगा डिटेल में. अभी आप लोग घबराइए नहीं, बहुत डिफरेंस है जो आप लोग बोल रहे हैं ना. पहली चीज की घबरा के कुछ नहीं बोलिए. अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस है तो फंक्शन आपका सिंपली डिफरेंशिएबल होगा. अभी कॉची-रीमान की बात हमने कतई नहीं किया. अभी ये डिफरेंशिएबिलिटी और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो केवल रियल डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप R2 to R2 भी फंक्शन, हम बात करेंगे कि क्या R2 to R2 अगर फंक्शन आपका अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो जाए तो क्या कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा क्या? अगर सिंपली R2 to R2 फंक्शन आप लें तो हम बताएंगे कि ऐसा नहीं होगा. और हम ये भी बताएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों को एक साथ मैंने क्लब किया है इसमें पढ़ाने के लिए, कि हम लोग केवल बेसिक्स पे बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे और ताकि बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो. हमारा बेसिक एम नहीं है कि हम पूरा डीप एनालिसिस करें. बेसिक एम हमारा कंप्यूटेशन की तरफ है, जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का एम है. लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स को हम लोगों ने इसीलिए क्लब किया है कि बेसिक फंडा हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए. तो इसलिए रियल डिफरेंशिएबिलिटी और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. हम मिक्स नहीं करें, हम दोनों को बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन R2 दिया गया है और अगर वो रियल सेंस में डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉम्प्लेक्स सेंस में भी डिफरेंशिएबल होगा. तो हम फिलहाल बता दे रहे हैं आपको कि नहीं होने वाला है. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है. कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी इज समथिंग एल्स. हाँ, उसमें जरूर है कि अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस हो जाए और साथ साथ ये जो कंपोनेंट्स इसके हैं वो कॉची-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने लगे तो ये रियल डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी में बदल जाती है. ठीक है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे जब कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी, हमें लगता है कि कुछ क्लासेज और इसमें बच गए हैं. इनवर्स फंक्शन थ्योरम खत्म करने के बाद हम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी पाएंगे तो उसे बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है सर, ये लास्ट टाइम क्या लिखा था आपने x0 के बाद में? ui. ओके. ui, ये जो बेसिस वेक्टर्स है ना ui, ये rm की बेसिस वेक्टर्स हैं ui. ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जो पिछले प्रोपोजिशन में था ना. तो इसमें ना इसको हम प्रूव करेंगे और ना अलग से इसको हम लिखेंगे, ये पिछला. लेकिन क्योंकि थ्योरम का पार्ट है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव की जो वैल्यू किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए है वो हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं. तो वो एक्सप्रेशन है. दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लास्ट प्रोपोजिशन. सो आई विल ओनली शो दैट इफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो आई विल डू इट ऑन नेक्स्ट टर्म. तो कल हमें लगता है अशोक शायद कुछ एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे. क्यों अशोक, आप पूरा रेडी रहेंगे या फिर कल वाला क्लास हम ले लें? सर जैसा आप सब बताइए करते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है भी पूरा एक्सरसाइज नहीं तैयार है तो हम कल ले लेते हैं. ठीक है, फिर कल हम इसको ले लेंगे. आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दिस पार्ट, तो मे बी नेक्स्ट वीक में आप ले लीजिएगा. ठीक है, आप ले लीजिए. वैसे हाँ कल हम ले लेंगे. कंटेंट था मेरे पास. अच्छा, कंटेंट है. नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास है कंटेंट, मैं अगले सप्ताह ले लूंगा. और लेकिन इन लोगों का हो जाए लगातार तो इन लोगों का कंटिन्यूटी नहीं खराब होगी, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाएंगे कहीं तो दिक्कत. ठीक है. सो आई विल
आई विल टेक क्लास ऑन टुमारो। तो टुमारो हमारा आखिरी में सब समराइज कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। कल 11 से 12 में क्लास लूंगा फिर आप। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।